Hello students. So in this lecture we are going to talk about vaccination and immunization. I hope आपने previous lectures को अच्छे से go through कर लिया और अच्छे से notes बना दिए. So आपको notes बनाने के बाद मुझे WhatsApp करना है. काफ़ी time से आपके message नहीं आ रहे, WhatsApp नहीं आ रहा है. ठीक है? So let's start with the topic immunization and vaccination. So vaccination and immunization. ठीक है. So now both these terms are interrelated because vaccination की वजह से बॉडी में immunization create होता है. So I'll put it as vaccination leads to immunization. Vaccination leads to immunization. ठीक है. Now किस तरीके से? So vaccination is introduction of antigen in body or that is introduction of vaccine into body वैक्सीन इन बॉडी. वाइल इम्यूनाइजेशन की बात करें तो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन में लिखा है वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन. पर इम्यूनाइजेशन है क्या? सो इम्यूनाइजेशन इज property by which body starts forming property by which body starts forming antibody against the antigen introduced in the body. Antigen introduced in body. ठीक है. सो जो मैंने यहां बात लिखी वैक्सीनाइजेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन. आई होप इट्स क्लियर नाउ बिकॉज वैक्सीनाइजेशन क्या है? दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन इन द बॉडी और उस वैक्सीन के इंट्रोडक्शन की वजह से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. प्रॉपर्टी बाय विच बॉडी स्टार्ट्स फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी. ठीक है. तो वैक्सीन में तो क्या होगा? वैक्सीन वुड कंसिस्ट the antigen. Vaccine would consist the antigen. ठीक है. सिंपल एंड इजी. नाउ एक और चीज जो है दैट इज वैक्सीन हेल्प्स इन जनरेटिंग मेमोरी. वैक्सीन हेल्प्स इन जनरेटिंग memory. B cells and memory T cells. Vaccine also helps in generating memory B cells and memory T cells. ठीक है. So immunization is a different term, vaccination is a different term, but vaccination leads to immunization. ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए. So now let's define what is a vaccine. ठीक है. तो वैक्सीन क्या होता है वो देख लेते हैं. आपको पता ही है वैक्सीन क्या, बट लेट्स पुट इट इन प्रॉपर वर्ड्स. सो इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन it is a preparation of a solution containing of a solution containing weak
या फिर killed या फिर attenuated, या फिर weak, killed या फिर attenuated germ और its product, germ या फिर उसका प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या हो सकता है? तो प्रोडक्ट में हो सकता है टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया which is neutralized. Product would consist of what? Toxin of bacteria which is neutralized. ठीक है? Which has the ability to evoke body for antibody production. ठीक है? सो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग, क्या होगा उसके अंदर? कंटेनिंग वीक और किल्ड और एटीन्यूएटेड जर्म. ठीक है? या फिर क्या हो सकता है? और इट्स प्रोडक्ट, जर्म का प्रोडक्ट भी हो सकता है. प्रोडक्ट में क्या होगा? सो टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया विच इज न्यूट्रलाइज्ड, जो बैक्टीरिया है उसका टॉक्सिन हो सकता है न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में. ठीक है? सो ये सब चीजें क्या करेगी? दिस हैव द एबिलिटी, विच हैज द एबिलिटी टू इवोक बॉडी फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन और इवोक द इम्यून सिस्टम फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ठीक है? So how the definition of vaccine is clear. So preparation of a solution containing weak or killed or attenuated germ or its product. Product में क्या हो सकता है? Toxin of bacteria which is neutralized, which has the ability to evoke body for antibody production. Body की जगह पे we can also put the term evoke immune system or body for its production. ठीक है? So the first person to come up with the vaccine, okay, or the first person to prepare self and effective means of active immunity, अगर मैं बोलूँ, so that is the father of immunology, Edward Jenner. Edward Jenner, that is the father of immunology. Father of immunology. ठीक है? He was the first person to come up with, first to prepare safe and effective. First person to prepare safe and effective means of active immunity against smallpox. ठीक है? So Edward Jenner is the first one to come up with to prepare safe and effective means of active immunity against smallpox. There's a very good story. What he found out that the person who is suffering from cowpox,
ओके, उनको स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते थे, ठीक है. द वुमेन यूज टू वर्क फॉर मिल्क in the dairy. Those women who had suffered from cowpox, they were not having smallpox. So he got an idea that why is it happening, why this women who had suffered from cowpox are not prone or not getting smallpox. Okay, so he got an idea that maybe the infectious agent once entered the body, the virulence or the effectiveness of that pathogen has decreased on the second time. ठीक है, तो उसको एक आइडिया आ गया इस तरीके से. तब जाके उसने क्या डेवलप किया, ही डेवलप्ड द सेफ एंड इफेक्टिव मींस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन की जो टेक्निक थी उसका आइडिया किसको आया, एडवर्ड जेनर को आया. ठीक है, द पीपल हु वर वर्किंग विद cow in a dairy industry and had suffered from cowpox, they were not having smallpox. उनको smallpox नहीं होता था. तो क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज जिसकी वजह से काउपॉक्स हो रहा था, जिस एंटीजन जिस पैथोजन की वजह से काउपॉक्स हो रहा था, ओके, उसी का एक फॉर्म वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर स्मॉलपॉक्स. सो वंस दे वर अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर फॉर्म फॉर काउपॉक्स, दे वर नॉट हैविंग स्मॉलपॉक्स. सो ही गॉट एन आइडिया, वैक्सीन का आइडिया उसको आया कि अगर इम्यून सिस्टम को, अगर बॉडी को पहले से ही उस पैथोजन के कांटेक्ट में लाया जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी, अलर्ट हो जाएगी. ओके, और दूसरी टाइम अगर वो पैथोजन आता है तो बॉडी उससे इंटरैक्ट कर पाएगी काफी रैपिडली. ठीक है, सो एडवर्ड जेनर इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. फिर अगर मैं दूसरा नाम लिखूं यहां पे, लुइस पास्टर. सो लुइस पास्टर की अगर बात करते हैं, सो ही प्रिपेयर्ड वैक्सीन फॉर, he prepared vaccine for chickenpox, florella, anthrax and rabies. ठीक है, लुइस पास्टर. फिर एक और नाम मैं दे देता हूं, एंडर्स. Prepared vaccines against measles. Against measles. ठीक है, so these are some of the scientists, Edward Jenner, Louis Pasteur and Enders, and these are the vaccines prepared by them. Vaccines for chickenpox, cholera, anthrax, rabies, and prepared vaccine against measles. ठीक है, this one was smallpox. Now the discoverer of passive immunization, कौन था? Who discovered passive immunization? So Emil von Behring. Emil von Behring. ठीक है, this is the guy who is responsible for or is the discoverer of passive immunization. Discoverer of passive immunization. ठीक है, now how he came up with this passive immunization? So उन्होंने क्या किया, जो there was an infected girl,
infected girl, say I mean the girl suffering from a disease known as diphtheria. तो जो गर्ल डिप्थेरिया से सफर कर रही थी, उस गर्ल में से जर्म्स निकाले amyl-1 bearing ने, germs causing diphtheria, and these germs were transmitted or transferred to the बॉडी ऑफ शिप. ठीक है, तो जब ये जर्म्स को ट्रांसफर किया शिप की बॉडी में, तो शिप की बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द जर्म्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द शिप. एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट germs inside ship body. ठीक है, फिर क्या किया? वो एंटीबॉडीज को शिप की बॉडी में से निकाला. I'm talking about the work of Emil von Behring. Antibodies collected from body of ship and antibodies transferred to the girl suffering from diphtheria. ठीक है, antibodies transferred to the girl suffering from diphtheria. And what was observed? Infected girl recovered. जो इन्फेक्टेड गर्ल थी, द वन जो सफर कर रही थी किससे? डिप्थेरिया से. ठीक है, तो जब डिप्थेरिया के जर्म्स निकाल के शिप की बॉडी में ट्रांसफर किए, तो शिप ने क्या किया? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. उन एंटीबॉडीज को कलेक्ट किया गया, फिर से इन्फेक्टेड गर्ल की बॉडी में डाला. ठीक है, तो क्या देखा गया? द गर्ल रिकवर्ड. ठीक है, सो देन केम द आइडिया टू Emil-1 Behring अबाउट द पैसिव इम्यूनाइजेशन. दिस इज हाउ ही डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. वेरी सिंपल एंड इजी. नाउ देयर आर सम पोस्टुलेट्स जो रॉबर्ट कॉश ने दिए थे. Robert Koch is the one who discovered the bacteria for tuberculosis and cholera. Robert Koch discovered bacteria for tuberculosis and cholera. ठीक है, रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड बैक्टीरिया फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा. तो थोड़े बहुत पोस्टुलेट्स दिए थे रॉबर्ट कॉच ने. दोज पोस्टुलेट्स आर टर्म्ड एज कॉच पोस्टुलेट्स. दोज पोस्टुलेट्स आर टर्म्ड एज Koch's postulates. So according to these postulates,
A pathogen causing disease should be regularly found in host. जो पैथोजन है जो डिसीज कॉज कर रहा है, इट शुड बी रेगुलरली फाउंड इन दी होस्ट. पैथोजन causing disease should be regularly found in host. ठीक है, जिसकी बॉडी के ऊपर वो हार्म कॉज कर रहा है. ठीक है. सेकेंड पोस्टुलेट इज पैथोजन शुड बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर. पैथोजन should be isolated and grown in a pure medium, and should be grown in a pure medium or a pure culture or artificial media. ठीक है. पैथोजन शुड बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन अ प्योर कल्चर और आर्टिफिशियल मीडिया. पैथोजन कॉसिंग डिसीज should be regularly found in host. And third is it should cause same disease when injected into other animal. When injected into other animal. ठीक है. And the fourth postulate is pathogen can be easily isolated from injected animal. Pathogen can be easily isolated from infected animal. ठीक है. So these are the four postulates given by Koch. So pathogen causing disease should be regularly found in the host. अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है डिसीज से तो वो पैथोजन उसकी बॉडी में रेगुलरली मिलना चाहिए. ठीक है. पैथोजन शुड बी आइसोलेटेड and grown in a pure culture or artificial media, and pathogen should cause same disease when injected into other animal. ठीक है. दूसरे एनिमल में डालोगे तो भी वो सेम डिसीज ही कॉज करना चाहिए जो एक पर्टिकुलर एनिमल में कॉज करे. ऐसा नहीं कि एक एनिमल में डाला तो एक डिसीज है, दूसरे एनिमल में कोई दूसरा डिसीज. नो, सेम डिसीज. एंड पैथोजन कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द पोस्टुलेट्स गिवन बाय कॉश. ठीक है. जो किसकी बात कर रहे हैं? जो पैथोजन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. इन्फेक्टिव एजेंट्स की बात कर रहे हैं. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. यहाँ पे भी थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है. तो अगर एक्सेप्शंस की बात करें जो ये चार पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे, व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस किसके? जो
कॉश पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो एक एक्सेप्शन जो है इसमें पैथोजन, दैट इज वायरसेस, वायरसेस ये चार में से कोई भी चीज फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। देन देयर इज अ पैथोजन दैट कॉजेस लेप्रेसी, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इज द नेम, ठीक है। क्या कॉज करते हैं ये? दे कॉज अ डिसीज नोन एज लेप्रेसी, बिकॉज अ डिसीज नोन एज लेप्रेसी। और एक और एक्सेप्शन है, दिस पैथोजन कॉसेस सिफाइलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट इज ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। सो ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या कॉज करता है? एसटीडी कॉज करता है, जिसका नाम है सिफाइलिस। नाम सुना होगा आपने। इट कॉजेस अ एसटीडी व्हिच इज नोन एज सिफाइलिस, ठीक है। सो कॉश पोस्टुलेट जो नहीं फॉलो कर रहे वो कौन कौन है? सो वी हैव वायरसेस, वी हैव माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, द वन व्हिच कॉजेस लेप्रेसी, एंड दैट इज ट्रेपोनेमा पैलिडम व्हिच कॉजेस सिफाइलिस, ठीक है। So let's move ahead and let's talk about some bacterial vaccines, some viral vaccines. So एक bacterial vaccine काफी famous है, आपने पहले लेक्चर में भी नाम सुना होगा। So we have a bacterial vaccine. और vaccines में see we have two things. अगर आप जो पैथोजन है उसका लाइव फॉर्म यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दैट पैथोजन इन अ लिविंग फॉर्म इन अ वैक्सीन, तो आप बोलोगे इट्स अ लाइव वैक्सीन। और अगर आप उस पैथोजन का डेड फॉर्म यूज कर रहे हो तो यू विल टर्म इट एज द किल्ड वैक्सीन, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट लाइव वैक्सीन, अगर मैं लाइव वैक्सीन की बात करूं तो क्या लिखेंगे? living form of pathogen is used in vaccine. Living form of pathogen is used in vaccine. एग्जाम्पल अगर देखें तो नाम पहले भी मैंने लिखा है, BCG, which stands for Bacillus of Calmette and Guerin. Bacillus of Calmette, ठीक है, this is the name of the scientist, and Guerin, this is also the name of the scientist. So B stands for Bacillus, C is Calmette and Guerin, ठीक है। So this is a vaccine which contains the live form of the pathogen, ठीक है, BCG. Then there's another one known as killed vaccine. अच्छा, ये जो BCG इसको किसके लिए यूज किया जाता है? This is used against TB. इसको TB के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में। Second form of bacterial vaccines is the killed vaccine. किल्ड वैक्सीन की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा? क्या लिखेंगे? डेड फॉर्म ऑफ पैथोजन is used as vaccine. Dead form of pathogen is used as vaccine. तो जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मैं लिखूंगा टैब,
क्या एग्जाम्पल है? टैप. टैप स्टैंड्स फॉर टाइफॉइड, then there is paratyphoid A, so A is for this A, and paratyphoid B. ठीक है, टैप, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A, पैराटाइफॉइड B. ठीक है. So this is a heat kill vaccine which is bacterial based, and this is live vaccine which is bacterial based. ठीक है. So now let's talk about, ये तो bacterial vaccines हो गए. Let's talk about the viral vaccines. तो viral vaccines की अगर बात करें, सो वायरल वैक्सीन्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी वी हैव द सेम कैटेगरीज. लाइव वैक्सीन. सो लाइव वैक्सीन में आप समझ गए हो कि क्या चीज़ है, तो मैं डिफाइन नहीं करूँगा लाइव वैक्सीन क्या है, बट आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. सो देयर इज अ वैक्सीन फॉर येलो फीवर. So we have the yellow fever vaccine. ठीक है. Then there is influenza vaccine which is a live vaccine. Some of the examples I am putting down. Influenza vaccine. Then there is MMR. MMR vaccine. It stands for mumps, MMR stands for what? It stands for mumps, measles and rubella. Mumps, measles and rubella disease. ठीक है, ये तीन को रिप्रेजेंट करेगा MMR वैक्सीन. mumps, measles and rubella. ठीक है. Then there is another one which is known as the Sabin vaccine for polio. जो पोलियो में वैक्सीन लिया जाता है, that is also belongs to the category of live vaccines under viral vaccines. So Sabin vaccine for polio. It is also known as generally it is known as the OPV, that is oral polio vaccines. ठीक है. It is as OPV, that is oral polio vaccine. So OPV or the Sabin vaccine for polio, they belong to the category of live vaccines under the viral vaccine headings. ठीक है. उसी तरीके से there are killed vaccines. यहाँ पे क्या होगा? किल्ड वायरस इज गोइंग टू बी यूज्ड. यहाँ पे क्या था? लिविंग वायरस वॉज यूज्ड. यहाँ लिख देता हूँ, मैं फिर से मेंशन कर ही देता हूँ. लिविंग वायरस यूज्ड. फर्स्ट वाले में बैक्टीरिया लिख रहे थे अपन. यहाँ पे डेड वायरस यूज्ड. So killed में we can put the Salk virus, Salk vaccine for polio. Salk vaccine for polio and this is Sabin vaccine for polio. These are two different. Salk vaccine for polio is killed vaccine, जिसमें आप क्या यूज कर रहे हो? डेड वायरस यूज कर रहे हो. बल्कि आप Sabin वैक्सीन फॉर पोलियो या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन की आप बात करते हो, उसमें आप क्या यूज कर रहे हो? आप लिविंग वायरस यूज करो. ये आप दिमाग में याद रखना. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों ही पोलियो के वैक्सीन है, बट दिस इज कंटेनिंग लिविंग वायरस व्हाइल दिस इज कंटेनिंग द डेड वायरस. ठीक है.
क्लियर है? सो वायरल वैक्सीन भी हो गए, लाइव वैक्सीन एंड द किल्ड वैक्सीन. नाउ लेट्स मूव अहेड. Let's talk about one more term, that is toxoid. Toxoid word comes from toxin. So what is a toxoid? So toxoid is neutralized toxin of bacteria. Neutralized toxin of bacteria. ठीक है, that is known as toxoid. ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देखें, so we have tetanus toxoid. Neutralized toxins क्या होते हैं? They are not going to harm you because they have been neutralized. So we have tetanus toxoid and there is diphtheria toxoid. ठीक है, क्लियर है? Then we can also use for immunization the bacterial products को भी यूज कर सकते हैं. Bacterial products can also be used to create immunization. So polysaccharide part of outer coat of पैथोजन. जो पैथोजन है उसका बाहर का कवर को भी आप यूज कर सकते हो टू कॉज इम्यूनाइजेशन. जैसे कि किन किन वैक्सीन्स में सिर्फ आउटर कोट को लिया गया है, किन वैक्सीन्स के प्रिपरेशन में पैथोजन के आउटर कोट को ही लिया गया है. तो वी हैव द न्यूमोकोकल वैक्सीन, वी हैव न्यूमोकोकल वैक्सीन है. ठीक है, देन वी हैव menin okay, so we have meningococcal vaccine. meningococcal vaccine है जिसमें सिर्फ क्या लिया गया है? आउटर कोट ऑफ पैथोजन लिया गया. एंड देन वी हैव द हेपेटाइटिस बी पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन. Then we have hepatitis B polypeptide vaccine. ठीक है, हेपेटाइटिस बी पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन. तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो कैटेगरी है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स वाली, उसमें आप क्या यूज करो वैक्सीन बनाने के लिए, इम्यूनाइजेशन कॉज करने के लिए? आप पैथोजन का आउटर कोट ही कंसिडर कर रहे हो, बाकी का पूरा पैथोजन कंसिडर नहीं कर रहे हो, सिर्फ आउटर कोट. सो वी हैव द एग्जांपल्स फॉर इट. न्यूमोकोकल वैक्सीन है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड द थर्ड जनरेशन वैक्सीन. ठीक है, क्या है ये चीज? So first generation vaccine. What is first generation vaccine? ठीक है, so prepared through conventional methods. A vaccine prepared through
conventional methods using whole microorganism, using whole microorganism. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होते हैं जिनके प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, पूरा के पूरा पैथोजन, पूरा के पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिख देते हैं पैथोजन भी यूज किया जाता है, पूरा के पूरा पैथोजन यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात करें, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की अगर बात करते हैं, सो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या किया जाता है, द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडवांस मेथड, वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू recombinant DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आप पढ़ चुके हो बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, प्रिपेयर्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड वन ऑफ द वेरी फेमस वैक्सीन जो है जिसको बनाया गया थ्रू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसका नाम मैं लिखता हूं, that is Recombivex. The name is Recombivex HB. ठीक है, ये जो वैक्सीन है इसका प्रिपरेशन किसके थ्रू किया है, इट्स प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट्स अ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन Recombivex। किसके ऊपर काम करता है, तो इट is a vaccine for treatment of hepatitis B, hepatitis B, and prepared from transgenic yeast, GMO yeast आप बोल सकते हो, है ना, ट्रांसजेनिक मतलब क्या हो गया, GMO हो गया ना। ठीक है, तो Recombivex HB which is prepared with the help of recombinant DNA technology is prepared from the transgenic yeast। ठीक है, क्लियर है। नाउ द थर्ड वन इज ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन वैक्सीन, आई रब दिस डाउन, इतना मैं रब करूंगा। ठीक है, रिकॉम्बिवैक्स आप याद रखो, वैक्सीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, किससे बनाया गया, यीस्ट से बनाया गया है। ठीक है, कौन सा यीस्ट, ट्रांसजेनिक यीस्ट। ठीक है, सब छोटी छोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए। Then we have the third generation vaccine. So ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, सो थर्ड जनरेशन वैक्सीन की अगर बात करते हैं, सो दिस आर सिंथेटिक वैक्सीन्स। यहां पे आपने यीस्ट को यूज किया था, बट यहां पे आप बिना कोई ऑर्गेनिज्म को यूज करें आप प्रिपेयर करोगे सिंथेटिक वैक्सीन्स। दिस आर सिंथेटिक वैक्सीन्स। ठीक है, जिसके एग्जांपल में आई कैन पुट द डिप्थीरिया टॉक्सिन वैक्सीन, toxin vaccine, and then we have the leukemia virus vaccine.
ठीक है, simple and easy. So the first generation vaccine, the second generation vaccine and the third generation vaccine, ठीक है, this is prepared by using the whole microorganism of the pathogen. This is used by using DNA, recombinant DNA technology. And the third generation vaccine, it is prepared in the lab without using any microorganism. It's produced synthetically. ठीक है, so आज के लेक्चर के लिए I'll keep this much. I hope आज के लेक्चर में आपको बातें समझ में आई है. अच्छे से नोट्स बनाने के बाद मुझे फॉरवर्ड कर देना. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज. ठीक है, थैंक यू सो मच.